नॉन बायोलॉजिकल कहने वाले अपने पीएम साहब के माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में रह रहे इंडियंस के लिए एक और बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी नागरिकता के लिए नई गोल्ड पॉलिसी का ऐलान किया गया है। इस ऐलान के बाद भारतीयों में पहले हलचल मच गई है। एक और जहां नई गोल्ड पॉलिसी से भारतीयों को नागरिकता पाना बेहद कठिन हो गया है, दूसरी ओर इंडियन सरकार भी जो है वो इन अप्रवासियों के लिए कोई मदद करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की नई गोल्ड पॉलिसी से 54 लाख भारतीयों पे संकट आया है और क्यों अब उनके लिए अमेरिकी नागरिकता की आखिरी दरवाजे जो थे वो भी बंद होने जा रहे हैं, ये सब कुछ मैं आपको अपनी रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही इस पर भी चर्चा करूंगी कि कैसे मोदी और उनका विदेश मंत्रालय चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरत। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी प्रवासियों के लिए सिटीजन संबंधी एक नई पॉलिसी लॉन्च की है। आपको बता दें कि ये मौजूदा EB-5 वीजा की जगह होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को इसका ऐलान करते हुए कहा कि आवेदकों को नागरिकता के लिए तेज रास्ता सुरक्षित करने के लिए 5 मिलियन का निवेश करना होगा। ओवल ऑफिस में बोलते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने इस पहल को ग्रीन कार्ड का अपग्रेड सिस्टम करार दिया है। उन्होंने बातचीत के दौरान जो है वो ये बताया कि इस प्रोग्राम के 2 हफ्ते में शुरू होने की उम्मीद है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा है, आप भी जरा वीडियो देखिए। We're going to be doing something else. It's going to be very good. We're going to be selling a gold card. You have a green card. This is a gold card. We're going to be putting a price on that card of about $5 million, and that's going to give you green card privileges plus. It's going to be a route to citizenship, and wealthy people will be coming into our country by buying this card. They'll be wealthy, and they'll be successful, and they'll be spending a lot of money and paying a lot of taxes and employing a lot of people. And we think it's going to be extremely successful. Never been done before or anything like this, but it's something that we're going to be putting out over the next, would you say 2 weeks, Howard? Do you want to say a couple of words about it? Sure. President, are there Wait a any minute. requirements for that gold Hang on a sec. card? Do you have to invest a certain amount of money? Today graduate from the Wharton School of Finance or Harvard or Stanford or any college, and nobody knows if you can even go to work for a company. So Apple and all these companies that want to get people to be working for them will be able to buy a card, and for the people that are number 1 in their class at top schools, I see that as one of the things. But generally speaking, it'll be people with money and people that create jobs, and they won't have to pay any tax on income outside of the United States, which they're not paying right now. They're not citizens, but they'll have to pay if they create jobs in the United States. They'll pay full taxes like everybody else. So you're getting big taxpayers, big job producers, and we'll be able to sell maybe 1 million of these cards, maybe more than that. And if you add up the numbers, they're pretty good. As an example, 1 million cards would be worth $5 trillion. 5 trillion. Wow. And if you sell 10 million of the cards, that's a total of $50 trillion. Well, we have 35 trillion in debt. That'd be nice. So we'll see. But it could be great. Maybe it will be fantastic. We have it all worked out from the legal standpoint. It's totally legal to do. Hasn't been done before. It's been done in many different forms. We give them away. Why should we give them away? We shouldn't give them away. सुना आपने कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने को मजबूत बनाने के लिए एक वीजा जो है नई पॉलिसी लाके लॉन्च कर दी है, लेकिन इसको EB-5 वीजे से जोड़ देने पे जोर का झटका जो है वो भारतीयों को लगा है। आपको बता दें कि मौजूदा समय में अमेरिका में लगभग 54 लाख से ज्यादा इंडियंस कॉन्ट्रैक्ट वीजे पे अमेरिका में रह रहे हैं, जबकि 18,000 से ज्यादा लोग अवैध रूप से अमेरिका में रहे हैं। इसमें से लगभग 200 लोगों को अमेरिका जो है वो भारत को डिपोर्ट कर चुका है, लेकिन जो 54 लाख लोग अमेरिका में रह रहे हैं, ट्रंप की नई नागरिकता पॉलिसी से उनकी नींदें जो हैं वो उड़ गई हैं, क्योंकि EB-5 की जगह इस पॉलिसी को मर्ज कर दिया गया है। आपको बता दें कि इसी EB-5 ही अब अमेरिका में भारतीयों को नागरिकता लेने को आखिरी रास्ता बचा था, लेकिन ये रास्ता भी जो है बहुत कठिन होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस गोल्ड पॉलिसी का ऐलान किया है उसमें नागरिकता लेने के लिए $5 मिलियन चाहिए। जी हाँ, भारतीय करेंसी के हिसाब से समझें कि अगर किसी एक व्यक्ति को अमेरिका की नागरिकता लेनी है तो उसको कम से कम 34 करोड़ रुपए अमेरिकी सरकार को देने होंगे। ऐसे में अमेरिका में रह रहे भारतीयों के सामने बहुत बड़ा संकट आके खड़ा हो गया है कि
इतनी राशि और इतना पैसा कहां से लाएं? क्योंकि अमेरिका में जो भारतीय वीजे पे कमा रहे हैं उनकी कुल औसत आय $1 लाख या उससे भी कम है। बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो $50,000 ही कमा रहे हैं। ऐसे लोग कैसे $5 मिलियन अमेरिकी सरकार को दे पाएंगे? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। बता दें कि कुछ उद्योगपतियों को छोड़ करके अमेरिका में रह रहे भारतीयों के लिए ये रकम देना आसान नहीं है। यही वजह है कि नई गोल्ड स्कीम लॉन्च होने से भारतीय परेशान हो चुके हैं। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान से पहले EB-5 पॉलिसी के तहत मात्र $1 मिलियन खर्च करके ही अमेरिका की नागरिकता ली जा सकती थी। इससे भी एक आसान रास्ता ये था कि स्लम बस्तियों में सिर्फ $8 लाख इन्वेस्ट करके ही नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन अब पूरी पॉलिसी को डोनाल्ड ट्रंप ने बदल दिया है। नई गोल्ड वीजा पॉलिसी के तहत अब सीधे $5 मिलियन के इन्वेस्ट के बाद ही किसी को अमेरिका की नागरिकता मिल पाएगी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले ने अमेरिका ने भारतीयों की परेशानी को बढ़ा दिया है। बता दें कि इस पूरे मामले में डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से दोहरा कैरेक्टर सामने आया है उनका। अभी तक जो डोनाल्ड ट्रंप गरीब लोगों को बेड़ियों और जंजीरों में जकड़ के इंडिया समेत दुनिया के तमाम देशों में ये कहकर भेज रहे थे, इससे देश की सुरक्षा को बड़ा खतरा है। अब वही ट्रंप अमीरों के लिए नई स्कीम लॉन्च कर रहे हैं ताकि उनके देश में निवेश हो और रोजगार की संभावनाएं बढ़े। लेकिन अब ट्रंप को महंगी नागरिकता देने में कोई खतरा नहीं लग रहा है। भारत, ब्राजील, मेक्सिको, पाकिस्तान समेत कई देशों के अवैध प्रवासियों के वापस उनके देश भेजा गया है। इसी के अलावा पनामा और ग्वांतनामो बे में भी ऐसे लोगों को रखा गया है। भारत में तो अब तक 3000 ऐसे अवैध प्रवासियों को लेके जा चुके हैं, जिसमें से ज्यादा लोग गरीब तबके के थे। आरोप है कि इन लोगों को हाथों में हथकड़ियां डाल के प्लेन में बिठाया गया था। लेकिन इस बीच इन्हीं डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी स्कीम लॉन्च कर दी है जो कि किसी भी देश के अमीर व्यक्ति को आसानी से नागरिकता मिल जाएगी। वैसे तो ये अमेरिका की अपनी नीति है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका की अगर अपनी नीतियों की बात छोड़ दी जाए तो अपने पीएम साहब की विदेश नीति उनके सबसे खास दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बहुत ही खराब साबित हुई है। हर बार अब यही दिखाई दे रहा है कि शायद इंडिया ट्रंप के दबाव में है। इसकी नजीर ये है कि पहले तो अपने पीएम साहब को ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण में नहीं बुलाया, फिर उसके बाद खुद अपने पीएम साहब भागे भागे अमेरिका पहुंच गए। उसके बाद कुछ फाइलों पे अमेरिकी फायदे के लिए दस्तखत हुए। इसके बाद सारा मामला जस का तस बना हुआ है। अभी भी भारतीय बेड़ियों और जंजीरों में जकड़े आ रहे हैं। हद तो ये हो गई है कि हर 2 से 3 दिन बाद पीएम मोदी के खास दोस्त डोनाल्ड ट्रंप $21 मिलियन का रोके जाने का शिगुफा छोड़ देते हैं। उन्होंने अमेरिका की 4 कंपनियों को भी अपने देश प्रतिबंधित कर दिया है। इसी के अलावा ट्रंप हर दिन भारत की टैरिफ ना हटाने और अपने देश में बड़ी टैरिफ लगाने की बात करते दिखाई दे रहे हैं। दवा, एल्यूमिनियम और तांबे जैसी अहम निर्यातक वस्तुओं पे वो लगा भी चुका है। लेकिन मोदी सरकार अभी भी सिर्फ ट्रंप के नारे लगा रही है। अब जब ट्रंप ने नई नागरिकता पॉलिसी का ऐलान कर दिया है और एक बार फिर से अमेरिका में रह रहे भारतीयों पर बड़ा संकट आ गया है, ऐसे में चुनावी मंचों पे जमकर बोलने वाले अपने पीएम साहब और उनका विदेश मंत्रालय मौन है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका में भारतीय पर एक बार फिर से संकट आ खड़ा हो गया है और अपने विश्व गुरुजी मौन हो गए हैं। आपको बता दें कि जब से अमेरिका में ट्रंप की सरकार आई है तब से लेकर के अभी तक हर दिन ट्रंप सरकार भारतीयों के लिए कड़े कड़े फैसले ले रही है और हर मामले में मोदी सरकार पूरी तरह से फेल हो गया है। क्या अब समय आ गया है कि मोदी सरकार को ट्रंप से सीधे 2 टूक बात करनी चाहिए? इंडिया के खिलाफ काम बंद करो, नहीं तो अब हम भी एक्शन लेंगे। इस पूरे मामले पे आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताइए। खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिए।